Kite symbolizes togetherness. It brings everyone together without any indifference. Kite festival is a popular festival in India and it takes place during Makar Sankranti in the month of January. People from different walks of life participate in this kite flying festival. The tradition of kite flying is for healthy exposure in early morning sun. These initial rays are good source of vitamin D. This simple poem, Kite, by Harry Benn, has a perfect stanza structure, line lengths, rhyme scheme and rhythm. The content and form make it beautiful and elegant. The poem starts with the lines like, "How bright on the blue is a kite when it's new." All of us like to fly kites. Have you ever tried flying one? The poet says, "The kite looks bright when it is in the blue sky. It dives, dips, snaps and soars like a ship. Riding on the wind, the kite reaches to the crest. Immediately, with a sudden gust, it takes rest and with the fall of the wind, it goes loose. Then with the help of a new breeze, again it goes up. It seems to us to be ruggeder when it flaps on a string in the top of a tree." This simple poem makes the reader picture a beautiful kite in his mind. The life of the kite is vividly given in the poem. In the beginning, the kite on the blue sky looks very bright. But you can see the downfall of the kite when it is rugged or torn and falls on the top of a tree. Let me now recite the poem for you. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill up, it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a ruggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. Harry Benn. That's all about this beautiful kite, friends. Hope you enjoyed this poem. Have a good day. Happy learning. आज हम NCERT इंग्लिश 6th स्टैंडर्ड की पोएम द काइट को रीड करेंगे। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी को काइट्स उड़ाना पसंद है। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? क्या तुमने कभी कोई काइट उड़ाई है? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। चलो इस पोएम में हम पढ़ते हैं कि आसमान में जब कोई पतंग उड़ती है तो वो किस तरीके से उड़ती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ द काइट व्हेन इट्स न्यू। ये कह रहा है कि जब खुले आसमान में, ब्लू आपको स्काई के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, ब्राइट मीन्स होता है चमकदार। तो जब एक नई नई पतंग होती है, जब वो खुले आसमान में उड़ती है तो वो कितनी चमकदार लगती है। विद अ डाइव एंड अ डेप इट स्नैप्स इट्स टेल देन सोर्स लाइक अ शेप विद ओनली अ सेल। अब वो कह रहा है डाइव मीन्स होता है गोता खाना एंड अ डिप नीचे की ओर। इट स्नैप्स इट्स टेल। स्नैप्स मीन्स होता है फर्राना, टेल मीन्स होता है पूँछ। तो वो कहता है कि वो पतंग जब आसमान में उड़ती है तो कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर आती है, इधर उधर जाती है और उसके साथ ही उसकी जो टेल होती है, जो उसकी पूँछ होती है पतंग के जो नीचे की साइड होती है, वो भी हिलती रहती है। देन सोर्स लाइक अ शेप विद ओनली अ सेल। जब सेल मीन्स होता है जल यात्रा के लिए, जब कोई शिप जल यात्रा पे चल रहा होता है, तैरता है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और सोर्स मीन्स होता है ऊपर की तरफ। तो जैसे समुद्र में लहरें आती हैं और उन लहरों के साथ जब एक शिप ऊपर नीचे जाता है, उसी तरीके से हमारी जो पतंग है वो हवा के साथ इधर उधर जाती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड
इट राइड्स। ऐसे ही हमारी जो पतंग है वो भी, विंड मीन्स होता है हवा, हवा के साथ इधर उधर जाती है। टाइड्स मीन्स आपके लिए दिया हुआ है हवा के बहाव के साथ। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पोल्स। क्लाइम्स मीन्स आप सभी को पता है चढ़ना होता है, और तो क्लाइम्स टू द क्रेस्ट यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ती हुई जाती है, ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, हवा के झोंके के साथ। और फिर हम क्या करते हैं, उसकी जो डोरी होती है उसे खींचते हैं, क्योंकि हमें वो कस के पकड़नी पड़ती है, वरना हवा के साथ इधर उधर जाके हमारी जो पतंग है वो नीचे भी जा सकती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और फिर जैसे ही हवा बंद होती है तो वो ऐसे दिखाई देती है कि बिल्कुल आराम में आ जाती है। When string goes slack, you wind it back। और उसके बाद स्लैक मीन्स होता है आपका धीमी पड़ जाना। जैसे ही हमारी जो हवा है वो धीमी पड़ती जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी जो स्ट्रिंग यानी कि जो उसकी धागा होता है जैसे हम पतंग को उड़ाते हैं, वो क्या करना पड़ता है हमें। स्लैक मीन्स धीमी पड़ जाना, स्ट्रिंग मीन्स धागा, उसे खींचना होता है जब तक कि हवा जो है वो वापस नहीं आती। एंड रन इनटिल अ न्यू ब्रीज blows and its wings fill and up it goes। और जब तक कि हवा ब्रीज मीन्स आपका एक अच्छी हवा के लिए दिया हुआ है, हल्की हवा नहीं चलती है, तब तक हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी पतंग को लेके इधर उधर घूमते हैं ना, कि उसको कैसे भी विंग्स मीन्स उसके पंखों को कैसे भी पतंग में हवा फिल हो जाए और वो फिर से उड़ने लगे। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। अब वो वही पोएम वाली जो आपकी लाइंस हैं फिर से रिपीट हुई हैं कि खुले आसमान में जब नई नई पतंग उड़ती है तो वो कितनी चमकदार लगती है। बट अ रेगडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। रेगडर आपका दिया हुआ है कि फटी हुई किसी चीज़ का फट जाना, कि जब उड़ाते उड़ाते पतंग को आपने देखा है कई बार वो ट्री के टॉप में जाके फंस जाती है ना, तो फ्लैप्स मीन्स होता है लटकी हुई, तो हमें वहाँ पे फंसी हुई दिखाई देती है, तो क्या होती है वो वहाँ पर अटक जाती है, तो हम उसे खींचते हैं तो खींचने में वो वहाँ पे फट जाती है और फिर हमें वो दिखाई नहीं देती है। ओके, तो ये आपकी पोएम कंप्लीट। में हम करेंगे पोएम 2 ऑफ क्लास 6, इसका नाम है द काइट, उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। ये जो पोएम है काइट, द काइट, इसके अंदर बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं, यानी कि जिनमें काम होता हुआ दिख रहा है, क्रिया जो है, क्रिया जो इसको बोलते हैं हम, क्रिया वाले शब्द हैं, जैसे कि डाइव है, गोता लगाना, डिप है, नीचे झुकना, स्नैप्स है, हिलना। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो वो वर्ड्स क्या क्या हैं, अगर हम पोएम देखें तो पोएम में हमारे को और वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि सोर्स यानी ऊंचा उड़ना, राइड्स यानी कि किसी चीज के ऊपर बैठना, क्लाइम, क्लाइम्स मतलब ऊपर जाना, पुल्स मतलब खींचना, फॉल्स गिरना, रन दौड़ना, ब्लोज यानी कि हवा का बहना, गोज यानी जाना, और फ्लैप्स। तो ये शब्द हैं जो कि यूज हो रहे हैं, एक्शन वर्ड्स हैं जो कि यूज हो रहे हैं इस पोएम में। तो इनका मीनिंग फाइंड आउट करना है, ये आप अपने आप एक बार डिक्शनरी में जरूर देखें। वैसे तो हमने इन सब के मीनिंग आपको बता दिए हैं। और ये फ्लैप का मीनिंग है लहराना। तो हमने आपको सभी मीनिंग बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप इनको मीनिंग्स को अपने डिक्शनरी में जरूर देखें और सीखें कि डिक्शनरी में हमें कैसे वर्ड्स को फाइंड आउट करना है और उनका मीनिंग कैसे देखना है। अब सेकंड क्वेश्चन है, रीड दीज लाइंस फ्रॉम द पोएम, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। तो ये दो लाइन दी हैं, द मूवमेंट ऑफ द tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called a simile. Can you suggest what or who the following actions may be compared to? ये जो दो लाइनें लिखी हैं पोएम की, ये और ये, इसमें बताया गया है कि जो पतंग है वो शिप की तरह ऊंची उठती है और
जैसे ही हम जैसे उसको एक बार खींचते हैं तो वो ऊपर उड़ती है, तो शिप की तरह ऊपर उड़ती है, यानी जो पानी का जहाज होता है उसकी तरह ऊपर उड़ती है। तो ये इस पोएम में हमें एक उपमा दी गई है, एक पतंग की उपमा एक जहाज से की गई है, पानी के जहाज से। तो इस तरह से ये सिमिली का मतलब होता है उपमा करना, यानी किसी चीज को किसी चीज के साथ कंपेयर करना। ऐसे ही कुछ नीचे इन्होंने ये दिए हैं एक्शंस, उनको हमें कंपेयर करना है किसी दूसरी चीज से। जैसे कि ही रन्स लाइक, वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? लाइक अ टाइगर, लाइक अ टाइगर, ही रन्स लाइक अ टाइगर। ही ईट्स लाइक अ पिग, यानी कि वो पिग की तरह खाता है। शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, न्यू कोयल की तरह गाती है। इट शाइन्स लाइक अ स्टार, चमक जो है वो स्टार की तरह है। इट फ्लाइज लाइक अ काइट और अ बर्ड, हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। इट फ्लाइज लाइक अ काइट और इट फ्लाइज लाइक अ बर्ड। तो ये हमने इन सभी के सभी ये जो एक्शंस हैं इनको हमने कंपेयर कर दिया, यानी कि इनमें हमने सिमिली का यूज किया है।